coming over to our speaker, Mr. Siddhant Gupta. So, hi guys, my name is Siddhant, and they have given a wonderful description of me. So, yeah, I have completed two data science interns, one in Snapdeal and one in KPMG. Both offered me a PPO, but I got placed at Amazon. So, first we'll be talking about data structures and algorithms. As there's one question also, what's more important for better intern and placement, DSO development? And I guess there will be some people who are very good in algorithms, some people who are not so good in algorithms. But I'm going to tell you a way in which in these 2 months, like June and July, you can master data structures and algorithms in such a way that like 80% I'm sure you will get a job. And also I have handpicked 150 questions for you guys. If you practice these questions, only these questions, then I'm sure that 80% sure that you'll get a good job. Like to tell you something, like I started coding DSA last March 2020. So many persons I tell this, they don't agree with me. I've cracked the company in such short period of time, but in reality, I just learned C++ in last January. I used to do Python and a lot of data science stuff, but I was not good at DSA, data structures and algorithms. I was more machine learning oriented. I had done my interns, I've written research papers in image segmentation, and recently my thesis papers on malware detection. But as someone here asked, what is important, DSA or development? So I would just like to tell you one thing: for job and internships, be it in any IT field, be it in development, be it in you are a machine learning engineer, data science, data analyst, they are going to ask you DSA. No doubt, they will ask you DSA. So DSA is very important. Now there comes what language you should learn for DSA. For DSA, it's all problem solving, nothing else. So you should learn one language from these two, C++ or Java. Python will not work because many of the companies do not accept Python or C# or any other language, or even not C. I'll prefer you learn C++ because it's easier than Java. You don't have to do error handling and all. But even if you do Java, it's okay. So after that, these are some 150 questions, right? So what I did was you pick up a question. These are from lower difficulty to higher difficulty. So what you do is you pick up one of the question, and the biggest myth while problem solving is don't look at the solution. I say look at the solution. Don't cram the solution. Look at the solution and try to grasp what is happening in the solution. If you don't get it, then search Stack Overflow or something. Even if you do 50 questions by looking solutions, and from the 51st question, you will have no need to look for most of the solutions. For example, this question, to sum. This is a very simple question. Like it just asks you that given a target value, you have to pick up two values from the array which sum up to the target. So this problem has a lot of application in other problems. For example, I'll tell you a very fascinating thing here. Like these 150 questions which I've done, 4 questions as it is came in my Amazon interview. Like they asked me 8 questions and 4 questions came from this as it is, and I'll show you which ones. Like there's this dynamic programming question, which is this night dialer. So basically it says that you have a night and it can maneuver over all the squares of all the digits of a phone pad, and you have to decide how many different numbers it can form. So this question came in my bar raiser interview in Amazon, like which is the difficult one. And what they do is like Amazon fan companies, most of the companies is that they'll mix two questions. For example, there's one question, binary tree maximum path sum. This question helps you to learn how to traverse from a node to a parent node. And there's one more question in graphs, which is this rotten oranges. This is one of the most famous Amazon Microsoft questions, and it says that if there is an orange given in a grid and it is rotten, and every second the oranges adjacent to it will rotten. You have to tell the time in which all the oranges will get rotten. So what question I got was that you are given a tree, one node is burning, and every second the adjacent node burns. Tell the time in which all the nodes will burn. So you see what we have to do in this question. We have to find out how to travel from the node to a given parent, which we can take from this question, maximum tree path sum. And from this question, we can take this rotten oranges part. So this is how these companies ask. If you ask me, you need to do competitive programming. Like competitive programming helps in some companies which are very service specific. For example, Coordination and Sprinkler and DShaw. But for other companies, for example, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Amazon, Microsoft, LinkedIn, all these companies are basically mainly focused on lead code. And I'm saying practicing lead code and practicing these 150 questions which I picked for you is more than enough. Will get you a job with a good package. And the thing is, this is the sad part, that if you do as much development, as much data science, if you're very good at development, you can build apps, you can build JavaScript apps, games, and there is a person who can do better DSA than you, but can't do these things, although you are more deserving, but he will get the job. And that is the sad part. Because, for example, the fan companies, like, they don't even see your CV sometimes. Straight away, what they did was, you come, you have to code it live. At least in these Corona times, there was a live coding session on a common environment. And if your solution works, then you are well to go. That's it. That is it. They don't ask you what projects you have done. Two of my friends were placed in Microsoft. उनसे भी नहीं पूछा
मेरे से भी नहीं पूछा, and many of my other friends, they have also not been asked, except for some companies like which are recent startups and they want specific language to know, because वो नहीं चाहते कि when you join the company they have to teach you how to basically program in Java or how to basically program in script or anything else. Now I like to discuss कि DSA में क्या तुमको करना चाहिए सबसे पहले. Arrays and strings, do it to do your basics, and arrays and strings are important, but at least they help you grab the basics. Okay, so arrays की मैंने questions डाले हैं कुछ related to sub arrays, some, and these are more than enough. Okay, next, the most important topic I'll say is binary search. Like, if you give 5 interviews, then 3 interviews will contain a question from binary search, that confirm. And binary search, maybe there are a lot of types of questions like finding peak element, sorted rotated array, and these are some standard questions. और घुमा फिरा के ना इसी से आएगा. 90% of the cases I've seen that the questions घुमा फिरा के लीड कोड के ही होते हैं. The next most important topic is sliding window. I'll also mark these topics कि कौन से ज्यादा important है, so you will get practice. This is very very important. You should do all these questions. Next most important topic is greedy, which is very simple, but you have to just guess कि कहाँ पे greedy लग रहा है and where you have to apply dynamic programming. Next is dynamic programming, very important. Most of you have problems. Some people quit, some people don't do. Many of my friends also didn't do this. They find it difficult. But practice at least 30 questions of dynamic programming में क्या होता है? You have to see the solution. You have to look at solutions. You have to not cram it, but you have to understand कि एक एक line पे क्या हो रहा है. There's a lead code पे discussion section, and you can, or in GFG also there's a discussion section. You can go there and see at what every line what is happening. If you don't get it, then Google it. You just need to get the logic. For dynamic programming, what I've done is these questions are in increasing order difficulty. For example, if you start practicing with stacks, and what happens in stacks is there are a lot of parenthesis questions, as you can see. So what you have to do is in stacks, like if you see 2 or 3 questions, then you will know that there's a pattern in every question and you will get the question. DSA is more of pattern recognition, to be honest. कि you see one question, you see तुमने इस टाइप का कहाँ देखा. Even competitive programming में भी the people who are 2020 200 they do the same thing. I have discussed with them, they do the same thing. They have practiced so much that they just like pick up idea from one question, picks some idea from one question. They try to make sense out of what is presented to them. Similarly here, तो stacks में क्या होता है? Suppose you are practicing stacks, तो stacks में क्या होगा कि you look for 5 questions, you have seen solutions, you have understood. 6 questions से तुमको solution नहीं देखना पड़ेगा. तो stacks, heaps, sorting, searching, binary search, ये सब easy लगता है. लेकिन जो सबसे 2 important topics हैं for your interview preparation, there's a dynamic programming and graphs. Graphs, trees, dynamic programming. Trees, graphs एक ही में आता है. Interview preparation और competitive programming बहुत different चीजें हैं. पहली बात तो इसको बिल्कुल different कर लो. और competitive programming is not solving code forces questions every day. It is solving those 6 questions in the time limit of 2 hours. That is called competitive programming. तो अगर तुम contest देते हो वो competitive programming है. अगर तुम सिर्फ code forces से question practice करते हो, that is not competitive programming. So interview preparation and competitive programming are way different things. तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक अलग अप्रोच होती है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की एक अलग अप्रोच होती है. तो उसमें जनरली व्हाट यू डू इज कि यू sit for an hour or 1.5 hours and you ponder on the question. नहीं समझ आता तो तुम छोड़ देते हो, you move on to the next question. नहीं समझ आता और फिर बाद में when you have finished with your the goal you have set for today, you go back to those questions and again try. और फिर नहीं समझ आता solution देखते हो. अब तो जैसे time भी कम है, like you have two months. What you have to do is, like for example, you start with dynamic programming. पहले क्वेश्चन को कोशिश करो, ट्राई इट फॉर 20 मिनट्स. 20 मिनट्स में नहीं होता तो सोल्यूशन देखो. आधा सोल्यूशन देखा, समझ आ गया, कोड करो. नहीं समझ आया तो पूरा सोल्यूशन पढ़ो, उसको या तो कोई जॉट डाउन करो, उसको समझो. क्रैम नहीं करना. देखो ये रटने का नहीं होता. अगर रटोगे तो क्या होगा कि बाद में वो तुम भूल जाओगे अगर उसके अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा. तो you just try to understand what is happening, and there's so many free resources, क्योंकि तुमको पता चल जाएगा मेमोराइजेशन क्या होती है, या फिर टॉप डाउन डीपी क्या होती है, which is memorization, bottom up डीपी क्या होती है. एंड बेसिकली तुम इस तरीके से you can grasp dynamic programming. लेकिन the main thing in this is you have to look at solutions if you are not getting it. Disheartened नहीं होना. कि I have seen a lot of juniors जिनने मेरे से पूछा कि वो उनका हमेशा यही होता था कि भैया हमने मतलब करे 5 से 6 क्वेश्चन नहीं हो रहे और फिर मन नहीं कर रहा था. लेकिन मैंने खुद 40 क्वेश्चन पहले देखे थे डीपी के, और मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ 30 to 40 क्वेश्चंस बिफोर गेटिंग कि हाँ कैसे हो रहा है. और उसके बाद धीरे धीरे जैसे अच्छा ऑल्सो हम इसके बाद आएंगे मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पार्ट, वो ज्यादा बड़ा है. ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, हल्का सा डिफरेंस है. ऑल्सो सबस्ट्रिंग सब सीक्वेंस में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब द वे यू डू इट. तो बेसिकली
इंटरव्यू में भी ऐसे ही होगा कि तुमने जिस को क्वेश्चन कर रखा होगा ना, उससे हल्का इधर उधर का क्वेश्चन आएगा. जैसे व्हेन आई गिव द मिंत्रा पेपर, आई वाज सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, तो उसमें भी जो इसमें जैसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है यहाँ पे बीएफएस एंड डीएफएस में, ये नंबर ऑफ आइलैंड्स, मैक्स एरिया ऑफ आइलैंड. तो ये कि आइलैंड से रिलेटेड शॉर्टेस्ट ब्रिज का क्वेश्चन था जो उनके पेपर में आया था, विच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन. लेकिन क्योंकि मैंने इस टाइप का करा हुआ था, उसको थोड़ा सा उन्होंने ऑल्टर कर दिया था. लेकिन अगर तुमने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हुए ना, तो तुम वो ऑल्टरेशन निकाल लोगे. लिटरली whenever you are giving an interview का जो प्रीलिम क्लियर कर रहे हो, तो जो इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू में बैठे हो तो यू अगर तुम वहां पे सोचने बैठ जाओगे ना क्वेश्चन को कि एग्जैक्टली कैसे करना है, बिल्कुल नए थॉट्स है, वो भी करना पड़ सकता है, ऐसी बात नहीं करना पड़े. लेकिन मोस्टली जो अप्रोच होती है ना, यू फर्स्ट थिंक कि ऐसा क्वेश्चन कहीं देखा है कि नहीं. जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, जो मिंत्रा के कुछ क्वेश्चन अच्छे आए थे. तो फॉर एग्जाम्पल जो उसका लास्ट क्वेश्चन था, इट वॉज रिलेटेड कि 2 आइलैंड्स हैं, उनके बीच में एक ब्रिज बनानी है, तो शॉर्टेस्ट ब्रिज बनानी है, पर उसमें कुछ मल्टीपल आइलैंड्स का केस था, तो हमको आइलैंड्स का ट्रैक रखना था. तो बस यही डिफरेंस था. तो उसमें क्या करा था उन लोगों ने, लाइक नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला क्वेश्चन और शॉर्टेस्ट ब्रिज वाले क्वेश्चन को मिला दिया था. तो हाउ आई वाज एबल टू सॉल्व इट, मैंने वो वाला कर रखा था और मतलब दोनों क्वेश्चन कर रखे थे, बस उन लोगों ने उसको क्लब कर दिया था, एंड आई वाज एबल टू सॉल्व इट. क्या होता है इन जो हार्ड ट्रूथ है इंटरव्यूज की, एक्सेप्ट फॉर द टॉप कंपनीज इज, या फिर अर्बन कंपनीज वगैरह, जो नई कंपनीज, जो स्टार्टअप्स हैं, जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं, इनका पेपर बहुत मुश्किल आता है. लेकिन इंटरव्यूअर आस्क यू रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस, क्योंकि या तो जनरली वो बहुत पुराने होते हैं. जैसे पब्लिसिस्ट सेपिएंट आई थी, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. तो पब्लिसिस्ट सेपिएंट का इंटरव्यूज में दे डिडंट आस्क एनी डीएसए. उन्होंने ओएस के क्वेश्चंस पूछे थे, डीबीएमएस के क्वेश्चंस पूछे थे. उन्होंने कोई, क्योंकि वो सारे एक्चुअली क्या था, लाइक वन मैनेजर वाज टेकिंग द इंटरव्यू एंड ही वाज 50 इयर्स ओल्ड. सो उस टाइम पे these things were not relevant, so he was not accustomed to asking these questions. So basically पहला तुम्हारा 50% काम इंटरव्यू का तभी खत्म हो जाता है अगर यू लाइक 50 से भी ज्यादा, कीप इट ऑन अ हायर लेवल, व्हेन यू फर्स्ट क्लियर द पेपर फॉर योर इंटरव्यू. पेपर में ही मुश्किल क्वेश्चन आएगा, और जनरली इंटरव्यू में से रिलेटिवली इजी क्वेश्चन आएगा जनरली, एक्सेप्ट फॉर कंपनीज जो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव कोडर्स हायर करना चाहती है. जिसमें तुमको एग्जांपल दे, कोऑर्डिनेशन हो गया. इवन स्प्रिंकलर इज हायरिंग नाउ दीस डेज, क्योंकि बेसिकली अगर तुम चेक करोगे यूनिकॉर्न बन गई है, सो इट इज गिविंग हाई पे एंड हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल. तो जनरली वो अपना बार कम कर देते हैं टू हायर अ लॉट ऑफ पीपल. लाइक हमारे कॉलेज से भी दे टुक 15 पीपल एंड दे ऑफर्ड अ 25-30 lakh पैकेज. So that was crazy, and they took 15 people from our college. So ये 150 क्वेश्चंस में से कोई मिस मत करना. अगर तुम्हारे पास टाइम है तो और कर लो. और जिनके पास सिर्फ 2 महीने हैं, जिनको या तो डीएसए नहीं आता है, फॉर एग्जांपल जिनको या तो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनके पास फर्स्ट ईयर का है, उनके पास तो बहुत टाइम है. जो फर्स्ट ईयर के हैं तो आई विल गो ईयर वाइज. जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आई विल एनकरेज देम कि तुम लीड कोड पे जाओ. लीड कोड पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करो. सी द डिस्कशन सेक्शन एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. और तुमको जो भी वहां पे दिक्कत होती है, तुम डिस्कशन में भी ना, अगर मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे लीड कोड मेरे पास खुला हुआ है, तो जी मैंने स्पेसिफिकली आइलैंड्स का टाइप किया. मेरे को पता ये आइलैंड्स का क्वेश्चन गारंटीड आएगा एक ना एक, तो किसी ना किसी इंटरव्यू में आता ही आता है. तो इफ यू पिक एनी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कोर्स शेड्यूल, एंड यू गो टू डिस्कस, सो देयर आर सो मेनी, देयर लाइक 999 प्लस. सो मतलब इसका मतलब तो अराउंड 5000 होंगे यहाँ पे. सो इसके यहाँ पे तुम मोस्ट वर्ड्स के सोल्यूशन उठा लो, और टॉप से बॉटम में तुमको एक पढ़ लिया, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिया, लाइक 4 तक तो तुम समझ आ जाएगा इनिशियली. और जब तुम बाद में तुम कस्टम हो जाओगे बहुत ज्यादा, तो उसके बाद तो तुमको बहुत सिंपली, तुमने फर्स्ट सोल्यूशन देखा, तुमको आधा सोल्यूशन पढ़ने पे आ जाएगा, हाँ मैं कहाँ मिस कर रहा था. ठीक है. एंड आई हैव आल्सो जॉटेड डाउन द क्वेश्चन जो मुश्किल टॉपिक है. फॉर एग्जांपल ग्राफ्स, क्योंकि थोड़ा ज्यादा डीप में चला जाता है तो लोगों को मुश्किल लगता है. तो ग्राफ्स में बीएफएस एंड डीएफएस में दीज आर मोर ग्राफ्स. आई कैन से फॉर 2 टॉपिक्स आई कैन से कंफर्म कि जो मैंने यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ्स के क्वेश्चंस दिए ना, ये मोर देन इनफ है. इससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत. ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो. तुम फॉर एग्जांपल ट्रीज में और क्वेश्चन कर सकते हो, ग्रीडी में तुम और क्वेश्चंस कर सकते हो इसके अलावा, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो. लेकिन अगर तुम यूर शॉर्ट ऑन टाइम, तो अगर तुम ये वाले डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस और ये वाले ग्राफ्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, तो दीज आर मोर देन इनफ. और हर इंटरव्यू में डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ से एक क्वेश्चन तो आएगा ही, या आई गेस मोस्ट प्रोबेबली दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा. मेरे खुद इंटरव्यू में 8 में से 6 क्वेश्चन ग्राफ्स और डीपी के थे. सो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, the most important resource for DSA is not code forces, is for DSA, not competitive programming. For DSA, for interviews, is not code forces or any site, not even GFG. GFG पे मत जाना, वहाँ पे आधे solutions गलत होते हैं. Please, if some of these questions are logged for you, then you can find on GFG or any other site कि question can try to solve it. Else, lead code is more than enough. और if
लीड कोड सॉल्व करने के पर टाइम है तो गो फॉर इंटरव्यू बिट, और मोस्ट प्रोबेबली 60%, 60 से भी 75% क्वेश्चंस क्लैश करते हैं लीड कोड और इंटरव्यू बिट के। एक दो जो बच जाएंगे यू कैन प्रैक्टिस ऑल्सो। अब मैं तुमको कैसे कह रहा हूँ, पैटर्न रिकॉग्निशन पे डिपेंडेंट है डीएसए ऑल ओवर। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम प्रायोरिटी क्यू के क्वेश्चंस देखो शुरू से होते हुए, के क्लोजेस्ट पॉइंट्स टू ओरिजिन, टॉप के फ्रीक्वेंट वर्ड्स, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, तो तुमको एक पता चल जाएगा कि टॉप के फ्रीक्वेंट वर्ड्स चाहिए। अच्छा यार इस टाइप का क्वेश्चन तो प्रायोरिटी क्यू में था, या टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स चाहिए, टॉप के पेयर्स, मतलब तुम हर चीज में देखो। सिमिलरली बाइनरी सर्च का तो तुमको पता चल ही जाएगा कि सर्च इन अ 2D मैट्रिक्स। और एक और चीज मैं बाइनरी सर्च वाले क्वेश्चंस में हाईलाइट करना चाहूंगा, बाइनरी सर्च में ना एक मोनोटोनिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, रिटर्न द मिनिमम के सच दैट दे कैन ईट ऑल बनानास विद इन एच आवर्स। तो इस टाइप की होता है कि मिनिमम और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम खाना है या मैक्सिमम टाइम में मिनिमम कोई काम करना, तो दैट इज मोस्टली बाइनरी सर्च। तो बेसिकली इस टाइप से तुमको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, और ये तभी होगा जब तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। किसी को कोई डाउट रिलेटेड टू डीएसए कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। यार कोड शेफ पे 5 स्टार इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज। अगर तुम्हारा है तो ऑब्वियसली तुम मेंशन करो, अगर तुम हो 5 स्टार कोड शेफ पे तो ऑब्वियसली तुम यू विल बी परफॉर्मिंग वेरी वेल इन डीएसए। पर पता है कुछ 5 स्टार जैसे भी होता है, कोड शेफ पे बहुत ज्यादा चीटिंग होती है, सबको पता होगा। सो जैसे वांट यू टू टेल कि अगर तुम हो तो यू शुड पुट इट इन योर सीवी, दैट इज अ मस्ट। लीड कोड इज मोर देन इनफ, यू डोंट नीड टू गो टू कोड फोर्सेस, दैट इज माय मेन पॉइंट कि अगर तुम कोड फोर्सेस में जाओगे बहुत वास्ट है और वहां के क्वेश्चन लेवल बहुत ज्यादा होते हैं। डिफिकल्टी लेवल ऑफ डीएसए फॉर इंटर्नशिप, डीएसए और इंटर्नशिप और फाइनल जो होता है क्या कहते हैं एफटी के लिए सेम ही डिफिकल्टी होता है, बल्कि मैं कहूंगा एफटी का ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है कि जो जॉब्स के लिए जो 4th ईयर वाला होता है उसका रीजन ये है कि पेपर तो बहुत कंपनी एक्चुअली सेम ही रखती है। इंटरव्यू जनरली इंटर्न वालों का 1 या 2 ही होता है, 2 मैक्सिमम फॉर एन इंटर्न, बिकॉज उसके बाद तुमको वहां पे पीपीयू मिलना, वहां पे तुम काम करोगे तो दे विल ऑटोमेटिकली सी कि तुम कैसा काम कर रहे हो। प्री मेड स्ट्रिंग फंक्शंस यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जस्ट स्टडी देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बेसिकली C++ में यू कैन यूज। वही मैं तुमको कह रहा हूँ पाइथन वगैरह में जो प्री मेड स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। फॉर एग्जांपल पाइथन का फॉर लूप, जो लोग पाइथन में काम करते हैं, फॉर लूप पाइथन में कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता यूज करना। Yes, first year can practice on other platform. Right, बिल्कुल सही। और you can go code forces, do वहाँ पे तुमको ज़्यादा brain खोलेगा। No, you don't need to master DSA if you want to go to MS and ML. शुरू में आएगी यार difficulty, तो वही मैं तुमको कहना चाह रहा हूँ, difficulty इसलिए आती है क्योंकि हमको बहुत सारे questions का when you are practicing, तो अगर तुमको 10 questions की solution देखने पड़ गए शुरू में पहले 1 या 2 महीने में, तो you feel disheartened कि फर्स्ट ईयर वालों के बता रहा हूँ कि वो थोड़ी धीरे पेस पे जाएंगे, तो 1 या 2 महीने में अगर दे डू 50 क्वेश्चंस और उनको 10, 15, 20 क्वेश्चन के या मैं कह रहा हूँ 30 क्वेश्चन के भी सोल्यूशन देखने पड़ गए तो डिसहार्टन हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ तुमको 100, 200 क्वेश्चन के भी सोल्यूशंस देखने पड़ेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, तुमको क्रैम नहीं करना, तुमको सोल्यूशन को समझना है और तुमको कि कैसे उसका फ्लो जा रहा है और कैसे how the question is being approached, that you have to understand. If you are practicing code forces, तो वहाँ पे editorial you can study. How to get started with DSA after learning C++. If you are in first year, then go for code forces और grasp कर लो थोड़ा code forces, तो तुम्हारा दिमाग ज़्यादा खुलेगा. And if you are short of time, then go on lead code, start practicing. अगर तुमको नहीं समझ आ रहा तो सीधा solution खोलो, question करो, solution खोलो, question करो, समझो, क्वेश्चन करो, क्योंकि तुमको C++ आती है, तुमको पता है मैप कैसे इंपोर्ट होगा. नो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स एक्सेप्ट फॉर सम कंपनीज लाइक कोडनेशन. आई एम अगेन एंड अगेन मेंशनिंग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही अच्छे कोडर्स चाहते हैं बेसिकली. ऑल्दो आई पर्सनली फील कि जो डीएसए में बहुत अच्छे होते हैं जरूरी नहीं है डेवलपमेंट में भी अच्छे हों, बट दैट्स हाउ द जॉब प्लेसमेंट्स वर्क. सो यू हैव टू बी वेरी गुड एट डीएसए. So the competitive programmers are really good at DSA, really good. So yeah, those companies, Codenation and DShaw, I'll mention these two companies specifically. They are looking for, and Google का जो पेपर होता है, that is a tough thing for lead code जिन्होंने किए उनके लिए. So you have to do code forces and all. But other companies, even Microsoft, Facebook, Amazon and LinkedIn, lead code is more than enough for getting. So development in DSA, you can divide it like you have for example a week, so you can do like you should, अगर time कम है तो do more DSA and less development, और अगर time ज़्यादा है तो do equally or you can do more development. Okay, so we'll switch to data science part. Okay, so अब हम data science का start कर रहे हैं. तो मैं अपना data science background बता दूं कि I have done 2 interns. One was in KPMG, which I did in 3rd year, and one was in Snapdeal, which I did in end of 2nd year. So both of them I got PPOs. Actually, my main motive is also to go in. Basically, जब मैं Amazon में भी I applied, so I asked them whether I can do a switch internally because I want to work in machine learning field. So that is I have been doing that from first year.
I've been practicing machine learning from first year. I've written research papers and also worked closely with in KPMG in designing a course for some other company. And actually, all the course content, the project part of the course content was made by me. Even as an intern, I made all the course content in KPMG in 2 months. For the project part. So सबसे पहले talking about what is important for interviews, then we'll go for masters वगैरह जो questions है. Interviews के लिए क्या important होता है data science के अंदर? तो सबसे पहले सबसे बड़ी myth, deep learning is the least important thing. याद रख लो इस बात को. डीप लर्निंग सबसे कम इंपॉर्टेंट होती है, शायद तुमसे पूछ ले. मैं गारंटी कर सकता हूँ कि मतलब 90% इंटरव्यूज में डीप लर्निंग नहीं पूछेंगे तुमसे, क्योंकि डीप लर्निंग वो तुमको बेसिक्स पे चेक करेंगे. अब तुम पूछोगे बेसिक्स पे कहाँ, मशीन लर्निंग नहीं. मशीन लर्निंग से भी इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स. प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वो तुमसे 3 प्रोबेबिलिटी के सवाल पूछेगा, तुमको नहीं आते होंगे, खत्म वहीं पे. तुमको कितना मशीन लर्निंग, तुमने कितना साइकिट लर्न क्रैक कर रखा है. बेसिकली डेटा साइंस इज कि तुमको थ्योरी आनी चाहिए, कोडिंग नहीं. डेटा साइंस की कोडिंग इज द इजीएस्ट थिंग, सबको पता है. यहाँ पे साइकिट लर्न इंपोर्ट करनी होती है अगर तुमको प्रैक्टिकल काम करना है. लाइक तुमको नेट पे कोड मिल जाता है, कॉपी पेस्ट करो. मैंने अपनी इंटर्न्स में 100 लाइन से ऊपर कोड नहीं लिखा है, लेकिन कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, कैसे उसमें सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन लगाना है, कौन सी टेक्निक्स लगानी है, दैट इज द पार्ट ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट. हाँ, तुमको लीनियर रिग्रेशन लगाना है, उसके बाद तुमको एसवीएम लगाना है, या तुमको कोई एन्सेम्बल मॉडल खुद का क्रिएट करके लगाना है, दैट इज अ वेरी, मतलब दैट इज वो लास्ट चीज होती है. उस पर आई गेस 10% अपना टाइम दिया जाता है. मोस्ट टाइम डेटा प्रिपरेशन और डेटा को क्लीन करने में, फीचर सिलेक्शन, इन सब चीजों पे दिया जाता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स यूज होती है, ना कि डीएल और एमएल. I'm going to tell you some important topics, you can note them down, which are very important और तुमने नहीं सुने होंगे, पर ये इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस के इंटरव्यूज के लिए. और अगर किसी बंदे को तुमसे बहुत अच्छी डीएल आती है लेकिन तुमको ये टॉपिक्स आते हैं, तो देयर हाई चांसेस कि तुम सिलेक्ट हो जाओ, क्योंकि these topics are more important for data science internships or jobs rather than knowing RNNs or knowing natural language processing or knowing computer vision. Although तुमको आता है तो you are on a higher edge. हो सकता है तुमसे पूछ ले, लेकिन ये चीजें हैं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं. तुमको सारी डिस्ट्रीब्यूशन आनी चाहिए, नॉर्मल, लॉग नॉर्मल, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तक भी आनी चाहिए. सब डिस्ट्रीब्यूशन आनी चाहिए और उनके नेचर. अब अगर जो एमसी के बच्चे हैं, तो जिन्हें प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोर्स होता है हमारा, तो दे मस्ट बी नोइंग कि देयर आर टॉपिक्स लाइक कर्टोसिस जो हम छोड़ देते हैं, उस टाइम पे पढ़ाते नहीं है. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, कि ये थर्ड मूवमेंट क्या होती है, सेकंड मूवमेंट क्या होती है, कर्टोसिस, डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मल क्या होते हैं, स्क्यूनेस क्या होती है. यू कैन नोट देम डाउन अगर तुमको ये चीजें, मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. मतलब ये फोरमोस्ट थिंग है तुमको करनी, जो करनी है. और आई नो हमेशा टेम्पटिंग होता है कि डीएल सीख लो जल्दी से, या फिर जल्दी से कंप्यूटर विजन सीख लो, इमेज सेगमेंटेशन सीख लो, या रीइंफोर्समेंट लर्निंग तक भी चले जाओ. ऑल तो मैंने उसका भी तुमको बता दूंगा कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या करने की जरूरत है. बट the most important thing is probability and statistics. तो उसमें जो topics हैं, I'll briefly mention them. So these are the topics I've written. सब नहीं लिखे मैंने, क्योंकि बाकी मैंने देखो specially लिखा है DL not much important. तो probability statistics में distributions and their nature सबसे important है. फिर है central limit theorem, जो avoid करा था probability statistics क्लास में, अच्छे से आना चाहिए. And I'm telling you, तुम YouTube पे चले जाओ या तुम कोई ब्लॉग पढ़ लो, तुमको central limit theorem 5 मिनट में समझ आ जाए. कुछ भी नहीं होता, ठीक है. 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से समझने में. So you can look for them. Bayes theorem कर लेना ढंग से and practice some questions on it, 2 या 3 questions. मेरे से एक इंटरव्यू में I gave an interview for a company, I forgot its name, it's a credit risk company and it is founded by the GoIBO founder, Indwealth. I gave an interview for Indwealth. So actually Indwealth is a startup, recent startup, which monitors your portfolio optimizations, financial engineering wala part. And what they do is they do it through algorithm. So they are hiring IIT engineers and IIM people for the stuff. So मैं वहाँ पे internship के लिए select हो गया था, लेकिन I didn't go for the internship क्योंकि I got a job, और उसके बाद मतलब I enrolled for internship in August 2020, लेकिन उस तक मेरा Amazon का आ गया था फाइनल रिजल्ट, तो आई डिडंट गो फॉर द इंटर्नशिप. ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता होगा कि डेटा साइंस की कंपनी ज्यादा क्यों नहीं आती हैं. तो रीजन ये है कि डेटा साइंस की जितनी कंपनीज होती है ना, दे प्रेफर मास्टर्स के लोग, वो लोग बैचलर्स के लोग कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग में और डेटा साइंस में कोड करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. कोडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इन डेटा साइंस. ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जितने भी लोग कर रहे हैं इस वक्त डेटा साइंस, तुमको पता है, तुम यूडेमी पे चले जाओ, 400 रुपए का कोर्स लेके, जो होस्पोर्टिला का है या फिर और भी 1-2 कोर्सेज हैं, यू कैन लर्न एवरीथिंग इन अराउंड 15 days, and everybody knows that, and then everybody mentions in the CV that they're a data science enthusiast. पर ऐसा नहीं होता है इन रियलिटी. व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज, अगर तुम किसी अच्छी कंपनी में बैठते हो जो स्पेसिफिकली डेटा साइंस के लिए, कुछ बैंक्स आते हैं वो पूछते हैं, और
इवन अगर तुम गोल्डमैन सैक्स वगैरह क्लियर कर दो तो वहां पे भी कभी कभी तुमसे डेटा साइंस रिलेटेड चीजें पूछ लेते हैं। मास्टर्स के लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि उनका मैथमेटिक्स पे होल्ड बहुत स्ट्रांग होता है, और जो मशीन लर्निंग है बेसिकली क्या है पीछे, लीनियर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स है और ऑप्टिमाइजेशन है, और कुछ भी नहीं है। ये 3 सब्जेक्ट है, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, लाइक ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह, वो सब ऑप्टिमाइजेशन है बेसिकली। तुम अभी अगर जो 4th ईयर में जाएंगे एक सब्जेक्ट आता है आगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, सो वो सब यूज होता है एक्चुअली मशीन लर्निंग में। तो मशीन लर्निंग इज बेसिकली मैथ, पाइथन इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट इट। तो तुम कभी भी मशीन लर्निंग का कोई पेपर भी देखोगे ना, उसमें सिर्फ दे हैव गिवन द एल्गोरिथम विद रिगरस मैथमेटिक्स, if you have noticed it. There is no code, nothing else. That is why जो ये companies होती हैं, for example Google and Facebook, basically Google ने TensorFlow बनाया and Facebook is having PyTorch. So basically ये companies उन लोगों को प्रेफर करती है जिनकी मैथ्स पे स्ट्रॉन्ग कमांड होती है, क्योंकि अभी तो तुम लोग scikit-learn या keras इंपोर्ट करके यू गिव अ डीएल मॉडल, लेकिन ये keras भी तो कुछ लोग बना रहे हैं ना। सो गूगल वगैरह को वो लोग चाहिए जो केरास पीछे बना सके, और उसके लिए यू नीड स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल होल्ड, क्योंकि क्या होगा पीछे यू हैव टू कोड ऑल दीज एल्गोरिथम्स जो which are basically mathematical equations, and you have to code them in an optimized way. That's it. So that's why they prefer MS people. But still जो और भी companies है, लेकिन for example some semi-tech companies or credit risk companies like American Express gives a good amount, and it comes for an analyst profile, and it asks, the problem with American Express is it asks DSA, पर एक क्वेश्चन आता है DSA का, जनरली एक या दो क्वेश्चन आते हैं एनालिस्ट वाली प्रोफाइल के अंदर, एंड मोस्टली दे आस्क लॉजिकल रीजनिंग, एक या दो क्वेश्चन आते हैं, एंड दे आस्क फ्रॉम उसके बाद जो तुम जाते हो अपनी प्रोफाइल के लिए, तो दे जनरली दे आस्क यू डेटा साइंस रिलेटेड स्टफ। सो उसके बाद तुम्हारा आता है बेस थ्योरम। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है मैं तुमको आगे बताऊंगा अभी, कि क्योंकि एक मशीन लर्निंग से पहले एक फील्ड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको एबी टेस्टिंग बोलते हैं। तो मैं तुमको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा, ये तुमको आनी चाहिए, क्योंकि अगर जब तुम अपनी कंपनी में काम करने जाओगे ना मशीन लर्निंग की, तो तुम आधे टाइम एबी टेस्टिंग कर रहे हो, एंड बहुत एब्सर्ड साउंड करेगा बट आधे टाइम एबी टेस्टिंग करोगे। मैं तुमको बता दूंगा व्हाट इट इज ऑल अबाउट, बट हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही यूज होती है एबी टेस्टिंग के अंदर, जो हमने प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं हम कॉलेज के अंदर। सो दैट इज व्हाट इज यूज इन एबी टेस्टिंग। जैसे कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, ये तुमको करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज यूज कि एक डेटा से तुमको एक डेटा तुमको दे रखा है, और उससे अगर तुमसे, मेरे से इंटरव्यू में पूछा था बेसिकली, कि अगर तुमको एक डेटा दे रखा है और काफी सारे डेटा पॉइंट्स है, तुमको डिस्ट्रीब्यूशन पता लगानी है, तो तुम टेक्निक बताओ जिससे पता लगोगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो दैट इज कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। नेक्स्ट इज QQ प्लॉट्स, बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस, कोवेरिएंस, पियर्सन रैंक कोएफिशिएंट्स, स्पीयरमैन रैंकिंग, confidence intervals, very important. Confidence intervals are used in financial ML, जहाँ पे सेमी टेक ML के अंदर कॉन्फिडेंस इंटरवल से ही तुम बताते हो कि कितने तुम्हारे स्टॉक गिरेंगे, तो तुम कॉन्फिडेंस इंटरवल में आंसर देते हो, ना कि तुम कहते हो कि तुम 70% लगा लो या फिर 70% प्रोबेबिलिटी गिरेगा और 30 नहीं है। यू गिव कि 70% भी प्रोबेबिलिटी है, तो कितने कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर। नेक्स्ट यू हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एंड टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, कि अगर तुम्हारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तुमको देखना है कि दो डेटा सेट्स कितने सिमिलर है, तो यू यूज दिस कोलमोगोरोव स्मिथ टेस्ट और केस टेस्ट, परम्यूटेशन टेस्ट एक्सेट्रा। अब तुम देखोगे कि दीज थिंग्स, मतलब मोस्टली मेरे को भी नहीं पता थी जब मैं पढ़ने बैठा था मशीन लर्निंग, कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये नहीं आता तो आगे ML आने का कोई फायदा नहीं है, ML DL, ठीक है। क्योंकि जो अच्छी डेटा साइंस की कंपनीज होंगी वो तुमसे ये ज्यादा पूछेंगी एज कम्पेयर टू दी अदर थिंग लाइक DL और ML, वो नहीं पूछते हो ज्यादा। अब आते एबी टेस्टिंग। व्हाट इज एबी टेस्टिंग? एबी टेस्टिंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये मशीन लर्निंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आनी चाहिए, ठीक है। इसका तुम कोई भी नेट पे जाके डेटा साइंस या ML विज पे कहीं पे भी जाके यू रीड अ ब्लॉग ऑन एबी टेस्टिंग, एंड देयर यूडेमी पे भी कोर्सेज हैं एबी टेस्टिंग के, तुम वहां से कर सकते हो। एंड बेसिकली एबी टेस्टिंग क्या होता है, सपोजिटली तुमने 2 वेबसाइट के पेजेस बनाए, तुम एक डेवलपर हो, तुमने 2 वेबसाइट के पेजेस बनाया, और तुमने एक पेज में बनाया, जैसे तुमने कोई भी Amazon या फ्लिपकार्ट का पेज डिजाइन करा, और तुमने एक में ऐड ऊपर लगाई और एक में ऐड नीचे लगाई, और तुमको देखना है कि किस पे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं या कौन सा हमको प्रेफर करता है, तो उसको एबी टेस्टिंग बोलते हैं। एबी टेस्टिंग, या तो मेरा माय वन ऑफ द वेब पेजेस इज बेटर और अनदर इज बेटर, तो इसमें ट्रेडिशनल एबी टेस्टिंग होती है व्हिच इज यूजिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और ये आज भी प्रेवेलेंट है। तुम अपनी कंपनी में जाओगे तो यू विल बी वर्किंग ऑन एबी टेस्टिंग। And next is Bayesian A/B testing. So this is what is the modern A/B testing is all about, because इसमें कुछ drawbacks होते हैं hypothesis test वगैरह में, जैसे कि you need a lot of samples, like एक वेब पेज को you have to like show it to 10 lakh और 20 lakh people, तब जाके तुम एक conclusion बना सकते हो discrete कि हाँ कि ये गलत है या फिर ये जो है ये वाला worse than the second one.
जो बेसिक टेस्टिंग में नहीं होता है। तो इसमें तुमको ये 3 चीज पढ़नी है, एक्सप्लोर एक्सप्लॉइट डिलेमा, एप्सिलॉन ग्रीडी और ऑप्टिमाइज इनिशियल वैल्यू थ्योरी, अपर कॉन्फिडेंस बाउंड थ्योरी और थॉमसन सम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इनमें से कोई टॉपिक मिस मत करना अगर तुम डेटा साइंस रिलेटेड इंटर्नशिप्स को प्रेफर कर रहे हो। अब तुमको मशीन लर्निंग में क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है लीनियर रिग्रेशन, पूरी डेप्थ में पढ़ना है। लीनियर रिग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें तुमको लासो रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, L2 L1 रेगुलराइजेशन जो होती है, क्यों होती है, इलास्टिक रिग्रेशन क्यों करना पड़ता है, ये सब तुमको डिटेल में आना चाहिए। तुमको ये नहीं पता होना चाहिए कि तुमको हाइपर पैरामीटर्स कैसे ट्यून करना है। सबको पता है ग्रिड सर्च एक टेक्निक है, उससे तुम कर सकते हो। तुमको पता होना चाहिए कि लासो क्यों यूज होता है, कि रिज रिग्रेशन क्यों यूज होता है, या इसका जो फंक्शन होता है जिसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, जो लॉस फंक्शन होता है वो वैसा क्यों होता है, इसके अंदर हम जो स्कोर्स यूज करते हैं, एडजस्टेड आर, ऐसा हम क्यों यूज करते हैं। दीज आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स रादर देन द प्रैक्टिकल नॉलेज। बेसिकली मशीन लर्निंग के केस में ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है, अगर तुमने पढ़ लिया बहुत ज्यादा तो तुमको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टडी एक्सटेंसिवली। तो तुमको हर चीज के पीछे रीजन पता होना चाहिए। अगर तुमने रिज रिग्रेशन पढ़ा है तो इसको क्यों यूज करते हैं, या फिर फीचर सिलेक्शन क्यों यूज करते हैं। उसके बाद तुमको लॉजिस्टिक रिग्रेशन ढंग से आना चाहिए, ड्रॉबैक्स आने चाहिए। अच्छा, इन सब के ड्रॉबैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि why sometimes a linear regression model is better than a neural network, ठीक है, क्योंकि इसकी हाई इंटरप्रेटेबिलिटी होती है, तुम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो उसको। सो और अगर दोनों चीजें सेम काम कर रही है तो यू प्रेफर लीनियर रिग्रेशन। अगर थोड़ा न्यूरल नेटवर्क अपर लेवल पे भी परफॉर्म कर रहा है फिर भी यू प्रेफर लीनियर रिग्रेशन बिकॉज ऑफ हाई इंटरप्रेटेबिलिटी। देन यू हैव लॉजिस्टिक रिग्रेशन। डिसीजन ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिसीजन ट्रीज कुछ नहीं होते, इफ स्टेटमेंट्स होती हैं। जिसने थोड़ी एमएल पढ़ी है उसको पता होगा कि डिसीजन ट्रीज आर जस्ट इफ एल्स स्टेटमेंट्स। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, ठीक है। अब इसमें तुमसे वो ये नहीं पूछेगा कि भाई डिसीजन ट्रीज में जब तुम इंपोर्ट करते हो तो बताओ कौन कौन से पैरामीटर्स को तुम कैसे वो करते हो। तुमसे वो ये पूछेगा डिसीजन ट्रीज में क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे डिसीजन ट्रीज में क्या प्रॉब्लम होती है कि इसके अंदर वेरिएंस बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो तुमको वो पूछेगा कि इतना भाई वेरिएंस हाई क्यों होता है। अच्छा, डिसीजन ट्री में डेप्थ कितनी तुमको कितनी डेप्थ पे प्रून करना चाहिए, क्यों प्रूनिंग यूज होती है। उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट विच कम्स इन एंसेम्बल्स, रैंडम फॉरेस्ट क्यों यूज होता है। तो रैंडम फॉरेस्ट का यूज होने का ये रीजन है कि वो डिसीजन ट्री एक लो बायस और हाई वेरिएंस मॉडल होता है, तो रैंडम फॉरेस्ट उसको लो बायस और लो वेरिएंस बना देता है। तो यू नीड टू नो द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, क्योंकि एवरी इंटरव्यू विल आस्क यू दिस रादर देन the coding part of in Python. Also, अगर तुम कोडिंग पार्ट में पूछो डेटा साइंस में क्या इंपॉर्टेंट है, सो कोडिंग पार्ट में तुमको डेटा फ्रेम्स को ढंग से मैनिपुलेट करना आना चाहिए। बेसिकली तुमसे कोडिंग में क्या करा सकता है, वो तुमसे क्वेरी लिखवा सकता है पांडास के अंदर, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीक्वल। पांडास में तुमसे क्वेरी लिखवा सकता है, तुमसे नमपाई में ग्रेडियंट डिसेंट कोड करा सकता है, ठीक है। तुमको कुछ कुछ एल्गोरिथम्स कोड करना आना चाहिए, तुमसे के मीन्स कोड करा सकता है। अब जैसे मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब आई गेस many people don't know this, और ये बहुत ज्यादा इंटरव्यूअर्स का फेवरेट क्वेश्चन है इन मशीन लर्निंग की, KNN, के नियरेस्ट नेबर्स को लेजी क्लासिफायर क्यों कहा जाता है। Why it is called a lazy classifier, and if you search all over the net, this is one of the most important questions of interviews. इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रेनिंग पार्ट नहीं होता। सो बेसिकली तुमको हर एल्गोरिथम का रीजन पता होना चाहिए, और क्योंकि मशीन लर्निंग में बहुत वास्ट एल्गोरिथम्स हैं, सो आई हैव मेंशन्ड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स। लीनियर रिग्रेशन तुमको ढंग से आना चाहिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन तुमको ढंग से आना चाहिए, डिसीजन ट्रीज तुमको ढंग से आना चाहिए, एंसेम्बल्स के अंदर बैगिंग और बूस्टिंग के मेथड ढंग से आने चाहिए। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं, स्टैकिंग होता है, वो नहीं भी आता चलेगा, लेकिन बैगिंग, बूस्टिंग और फिर एडा बूस्ट वगैरह कैसे होता है, ग्रेडियंट बूस्टेड ट्रीज क्या होते हैं, वो इससे रिलेटेड आना चाहिए। वो बेसिकली डिसीजन ट्रीज की जो प्रॉब्लम होती है उसको कम करने के लिए यूज होता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन अच्छे से आना चाहिए। सपोर्ट वेक्टर मशीन की थ्योरी बहुत ज्यादा है। SVM is the most complex method, even complex than the entire deep learning. इसके अंदर बहुत अजीब चीजें यूज होती हैं। इसका इवन जो ऑप्टिमाइजेशन का जो टेक्निक है वो पाइथन में लिखी नहीं जाती है, वो C++ में लिखी गई है और उसको पाइथन में इंपोर्ट करा जाता है। उसको सीक्वेंशियल मिनिमल ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, SMO बोलते हैं, SMO एल्गोरिथम। एंड उसके लिए एक बंदे ने पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया था कि SVM को कैसे सॉल्व करा जाए। तो SVM का तुमको थ्योरी पता होनी चाहिए कि SVM एक क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है। SVM के अंदर तुम्हारा वो यूज होता है, ऑपरेशनल रिसर्च यूज होती है पीछे, KKT लाग्रांज मल्टीप्लायर्स यूज होते हैं। तो तुमको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए SVM का, और दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ SVM कि SVM को कोड करने में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आती है। तो जो करंट जैसे प्रोग्राम है वो भी C++ में कोडेड है, विच इज इंपोर्टेड इन पाइथन। परसेप्ट्रॉन मॉडल आना चाहिए, बेसिक है बहुत। और जो अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग है उसमें तुमको के मीन्स और हायरार्किकल क्लस्टरिंग आना चाहिए। ये दीज आर मोर देन इनफ। एक डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग भी होता है, यू कैन डू दैट,
दैट इज कॉल्ड डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग. सो के मींस आना चाहिए. अब तुमको पता होना चाहिए के मींस के क्या ड्रॉबैक्स हैं, कि के मींस इलिप्टिकल पे अच्छे से काम नहीं करता है, तो इलिप्टिकल के लिए हम डेंसिटी बेस्ड यूज करते हैं. और के मींस के अंदर जितने और सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, के मींस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n की पावर क्यूब होती है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मेरे से भी एक इंटरव्यू में पूछा गया था, और मैंने भी 1-2 इंटरव्यूज लिए थे केपीएमजी के लिए. तो दे आल्सो टोल्ड, मतलब मैंने यही क्वेश्चन पूछा था वहां पे कि इसी को कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती मतलब ये क्यों दिस डज नॉट वर्क गुड इन रियल केस सिनेरियोस. हियरार्किकल क्लस्टरिंग आनी चाहिए. DL is not much important, but I'll let you know the basic topics of DL which you मतलब तुमको जो आना चाहिए, तुमको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर बैक प्रोपगेशन का एल्गोरिथम ढंग से आना चाहिए. तुमको पता होना चाहिए कि बैक प्रोपगेशन के अंदर डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज होती है. बैक प्रोपगेशन के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, चेन डिफरेंशिएशन होता है और मेमोराइजेशन होता है. मेमोराइजेशन इज अ पार्ट ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग. अगर तुमको DL के अंदर, मैं यहाँ पे आई जस्ट मार्क दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which is back propagation, मतलब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट है. कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स आने चाहिए, CNN आने चाहिए. बहुत डेप्थ में आने की जरूरत नहीं है, तुमको बेसिक्स आते हो, तुमको बेसिक फंक्शंस पता हो. ऑल्सो DL में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हारे एक्टिवेशन फंक्शन है. तुमको एक्टिवेशन फंक्शन अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन फंक्शन ये वाला है तो इसको क्यों यूज करते हैं. किसी रेल्यू है तो अगर रेल्यू यूज होता है बहुत ज्यादा, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है रेल्यू यूज होने में. रेल्यू के अंदर डेड एक्टिवेशन होती है. रेल्यू का जो नेगेटिव पार्ट होता है सारा 0 होता है, तो उसको हटाने के लिए हम लीकी रेल्यू यूज करते हैं, LU यूज करते हैं. तो तुमको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि tan H पहले यूज होता था, अब सिग्मोइड क्यों यूज होता है. ठीक है, सॉफ्ट मैक फंक्शन क्या होता है. तो बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक मैथ से रिलेटेड है. बेसिकली हाइपरबोलिक फंक्शंस हो गए, और तुम्हारा ये क्या कहते हैं, रेल्यू, LU, लीकी LU, और तुम रेल्यू में क्या प्रॉब्लम है, इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं. इसी तरीके से तुम वेट्स को कैसे ऑप्टिमाइज करते हो, वेट्स इनिशियलाइज कैसे करते हो. वेट्स इनिशियलाइज करने का भी ग्लो रेट यूनिफॉर्म मेथड होता है, XZ मेथड होता है. ये सब तुमको ज्यादा पता होना चाहिए एज कम्पेयर तुमको CNN की पूरी थ्योरी आती है. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. तुमको ये छोटी छोटी चीजें ज्यादा आनी चाहिए कि एक्टिवेशन फंक्शन ये वाला लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये लगाते हैं ये सबको पता है, ये क्यों लगाते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद RNN, अगर तुमको बेसिक आता है तो इट्स ओके. अब तुमको क्या पता होना चाहिए RNN के अंदर. जैसे RNN आता हो ठीक है, तुमको डीप में नहीं पता LSTM कैसे काम करता है या GRU कैसे काम करता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. वो जनरली तुम्हारे इंटरव्यू को भी नहीं आता, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि जो बेसिक RNN की मेन यूनिट होती है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है. वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होती है. तो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होती है ये तुमको आना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुमको ये आनी चाहिए कि ये हटाने के लिए हम LSTM लाए थे. तो RNN की बेसिक यूनिट थी, उसको L-man यूनिट बोलते हैं. अगर नहीं पता तो L-man यूनिट होती है जो RNN पहला बनाया गया था, लेकिन उसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स होती थी. तो हम LSTM और GRU पे गए थे और फिर अलग एल्गोरिथम्स आए थे. इसके अलावा जो और एल्गोरिथम्स होते हैं जैसे अटेंशन होता है जो आजकल ट्रांसलेशंस में यूज होता है, या फिर तुम्हारा सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स होते हैं, वो तुमको ना भी आता तो चलेगा. ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट टू नो दैट स्टफ. तुमको ये जैसे ये छोटी छोटी चीजें कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होती है, एक्टिवेशन फंक्शंस कौन से होते हैं, वेट इनिशियलाइजेशन क्या होते हैं, ऑल्सो जो तुम ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हो, फिर तुम स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर रहे हो, जो डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट डिसेंट होते हैं, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये सब तुमको पता होना चाहिए अच्छे से कि स्टोचैस्टिक में हम एक एक पॉइंट लेते हैं, बैच के अंदर हम बैचेस लेते हैं, फिर मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट होता है. तो यू शुड नो दीज थिंग्स इन डिटेल. जो तुम्हारे जितने भी बैच ग्रेडियंट डिसेंट्स वाले ये सब पार्ट्स तुमको डिटेल में आने चाहिए एज कंपेयर टू तुमको RNN CNN की पूरी वर्किंग पता हो. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये मतलब बहुत सारे इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि तुम मोमेंटम क्यों यूज करते हो, तुम एक्सेलरेशन क्यों यूज करते हो, व्हाई डू यू ऑप्टिमाइज यूजिंग ADAGRAD एंड ऑल दीज न्यू RMS prop, all these ADAM which is the most important, ADAM optimizer कैसे काम करता है, छोटी इक्वेशंस उनकी, तो तुमको बेसिक आइडिया होना चाहिए. The last branch which comes in is reinforcement learning. ये मेरे हिसाब से तो स्किप कर दो, पर if someone has time, so basically these are used in robot making and all. So इसके अंदर तुमको एक चीज पढ़ने की जरूरत है. अगर बहुत अच्छी कंपनी आ गई कोई, उसने पूछ लिया, इसमें मार्कऑफ डिसीजन चेन मॉडल्स होते हैं जिसके थ्रू यू कैन मेक गेम्स जो कंप्यूटर अपने आप खेलता है, बेसिकली ऑटोमेटेड गेम्स. यू मस्ट हैव सीन दैट फ्लैपी बर्ड वाली चीज. सो यू लर्न दिस और नेट पे यू कैन इजीली कोड योर ओन फ्लैपी बर्ड एल्गोरिथम. सो दैट इज वेरी सिंपल. सो ये इसमें तुमको यही आना चाहिए. एक लास्ट चीज मैं ऐड करूंगा, फीचर सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फीचर सिलेक्शन में जो अलग अलग मेथड्स होते हैं, सिर्फ वो नहीं जो जैसे हमने रैंडम फॉरेस्ट को यूज करके स्प्लिटिंग पे फीचर सिलेक्शन निकाल लिया, और भी मेथड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल you have mutual information. मैंने अपने पेपर में recently mutual information use किया and it got accepted in a journal too. So mutual information is very important.
ठीक है, इस टाइप की जो छोटी छोटी चीजें हैं, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन हो गया, लासो से तुम लीनियर रिग्रेशन से कैसे तुम फीचर को सिलेक्ट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हमारा जो डेटा सेट होता है उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और हमको स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए होते हैं जिससे हमारा कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी ना हो। ठीक है, तो तुमसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करने के लिए तुम क्या करोगे, तो तुम पीसीए यूज कर सकते हो, लेकिन पीसीए में इंफॉर्मेशन लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है विदाउट योर नोइंग, उसकी इंटरप्रेटेबिलिटी कम होती है कि क्या फीचर लॉस हुआ है। तो यू कैन यूज दीज मेथड्स, जो क्लीनिंग के मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, तुमको पता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादा फेवर करती है, तो जैसे ये बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, दीज आर यूज्ड टू कन्वर्ट एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू अटेंडिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो तुमको ये सब पता होना चाहिए इन केस ऑफ डेटा साइंस। आई जस्ट फोकस अगेन ऑन वन थिंग कि यू शुड फोकस ऑन दीज टॉपिक्स बहुत ज्यादा, मतलब तुम्हारे पास अगर टाइम है तो इनको तो डिटेल में पढ़ लो, मतलब जो ब्लॉग देख सकते हो। ठीक है, तुमको केस टेस्ट वगैरह की पीछे की वर्किंग पता होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेस्ट होता है। तुमको बस पता होना चाहिए कि केस टेस्ट एग्जिस्ट करता है जिससे तुम टेस्ट सिमिलैरिटी दो डिस्ट्रीब्यूशन की निकाल सकते हो। क्यू प्लॉट तुम्हें पता होना चाहिए, दिस इज क्वार्टाइल प्लॉट। ठीक है, तो तुमको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो नहीं है, तो हम उसके लिए क्यू प्लॉट यूज करते हैं। अगर हमको नॉर्मल बनानी है तो हम बॉक्स क्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, लॉग या एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। अब तुमको ये चीज पता होना चाहिए कि जो जो प्रिडिक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी लोग अभी डेटा साइंस करते होंगे उन्होंने टाइटैनिक वाला डेटा सेट पक्का पढ़ा होगा, तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे वो गिवन होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और फीचर्स, और उनको प्रेडिक्ट करना है कि ही मस्ट हैव बीन सेव्ड और नॉट। आई गेस, आई डोंट रिमेंबर, मैंने बहुत पहले किया था टाइटैनिक का डेटा सेट। तो इस टाइप के कोई भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम है जिसमें तुम्हारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो तुमको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोवेरिएंस शुड बी मिनिमल एंड डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हम कोवेरिएंस भी यूज करते हैं फीचर सिलेक्शन के लिए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है, ये सब तो एडवांस चीजें जैसे बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन और म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, ये इंटरव्यूअर तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुमको पता हो कि ये क्या होता है, लेकिन कोवेरिएंस हो तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि तुमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है, तुमको कोवेरिएंस पता है, अच्छा बताओ कोवेरिएंस से फीचर सिलेक्शन कैसे करो। और दिस इज अ वेरी हॉट क्वेश्चन इन डेटा साइंस इंटरव्यूज। तो तुमको पता होना चाहिए कि कोवेरिएंस से हम सारी वेरिएंस निकालते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, जिन के अंदर बहुत ज्यादा कोवेरिएंस होता है, जिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर, उसमें से कोई भी एक रख लेते हैं और दूसरे वाले को हटा देते हैं। तो ये तुमको ये चीजें पता होनी चाहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और एबी टेस्टिंग के अंदर ट्रेडिशनल एबी टेस्टिंग तो आनी ही चाहिए। बेजियन के अंदर तुम ये दो पढ़ लो, बेसिकली एक्सप्लोर डिलेमा आना चाहिए, एप्सिलॉन ग्रीडी पढ़ लो और थॉमसन सैम्पलिंग पढ़ लो। तुम ये बीच की दो मिस भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये थॉमसन सैम्पलिंग और ये सब आना चाहिए। और ये थॉमसन सैम्पलिंग इज टोटली बेस्ड ऑन योर बेस थ्योरम। ठीक है, सो दे अज्यूम कि तुमने बेस थ्योरम पढ़ा हुआ है तो तुमको ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, दे डोंट अज्यूम कि तुमको एसवीएम की पूरी थ्योरी आनी चाहिए, क्योंकि तुमने वो चीज कभी पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के अंदर ये इसी ऑर्डर में टॉपिक्स करना अगर तुमको करने हैं तो। डीएल के अंदर ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएनएन नहीं आता, एलएसटीएम नहीं आता, सीएनएन नहीं आता, चलेगा, लेकिन एक्टिवेशन फंक्शन के रीजंस नहीं पता, वेट इनिशियलाइज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये नहीं पता, ऑप्टिमाइजेशन में आरएमएस प्रॉप, एडम, एसजीडी कब लगाते, क्यों लगाते, मोमेंटम क्यों यूज करते, ये नहीं पता, देन इट इज अ प्रॉब्लम। रीइंफोर्समेंट लर्निंग यू कैन स्किप इफ यू हैव टाइम। सो अपने प्रोजेक्ट में तुम डाल सकते हो, मार्कऑफ डिसीजन चेन मॉडल्स पढ़ लो, उसके बाद खुद की फ्लैपी बर्ड गेम जो ऑटोमेटेड बनाओ और यू कैन पुट इट इन योर रिज्यूमे। वेरी बहुत सिंपल है, तुमको कहीं भी नेट पे यू विल गेट इट। एमएल और एमएल के अंदर मास्टर्स के लिए किसी ने पूछा था, तो एमएल के मास्टर्स के लिए आई विल बी आल्सो गोइंग फॉर दैट। सो आई विल टेल यू कि इसमें तुमको रिसर्च पेपर्स होने चाहिए तुम्हारे पास कुछ। ठीक है, अब रिसर्च पेपर एमएल में पब्लिश करने के लिए द मैथमेटिक्स मैटर्स। तुमने जितने भी, इफ यू पिक अप सम रिसर्च पेपर्स ऑफ एमएल, तुमने देखा होगा कि जो रिसर्च पेपर्स होते हैं दे आर ऑल मैथ्स ओरिएंटेड। तुम आज से पुराने एलएसटीएम, जीआरयू या जितने भी न्यूरल नेटवर्क है ये भी उठा लो, उसमें तुमको कहीं पाइथन नहीं दिखेगी, ये कहीं पे भी तुमको मैटलैब नहीं दिखेगी। You will only find deep maths, that's it, nothing else. तो maths is very important for ML. तुमको maths पे grasp होनी चाहिए, इसीलिए जो MC वाले होते हैं they are a bit edge in case of ML and data science, क्योंकि तुम लोगों ने linear algebra specifically पढ़ा है और तुम लोगों ने probability statistics का deep पूरा एक कोर्स करा है। तुमको ये बात अजीब लगेगी, लेकिन ये जो कुछ शुरू की चीज है ना, तो you can simply refer to HC तनेजा की जो हमारी बुक जो हमको probability statistics की लगी थी, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। उसके बाद तुमको नहीं समझ आता तो नेट पे एक बार देख लो, उसमें तुमको कोवेरिएंस और ये सब कॉन्फिडेंस इंटरवल्स तो तुम वहां से यू कैन इजीली प्रैक्टिस। और जॉब्स के केस में तुमको पाइथन आनी चाहिए बेसिक, और हाँ एक डेटा साइंस में तुमको सीक्वल पे अच्छी कमांड होगी। सो हियर आई फिनिश विद द वेबिनार फ्रॉम माय साइड एंड वी विल बी टेकिंग क्वेश्चंस नाउ। Yep. So thank you, Siddhant. Thank you so much. It was indeed informative. We'll start with the questions, guys. Before we formally begin with the questions and you people shoot in your questions, I am simply putting a Discord link. If you have any doubt or you want to
go about joining our Discord channel, you can surely go there, and we'll be announcing a lot more details in the Discord channel direct. So I'll start taking the questions up. Okay, from where to practice questions code related for ML? यार ML में there are no practice questions. ML में there are projects. Kaggle पे जाओ और वहाँ पे simple data sets उठाना शुरू करो. For example, start with the toy data sets. I'll first एक flower data set होता है, ठीक है? एक वो उठाओ जिसमें iris flowers वगैरह होते हैं, iris की सारी टाइटैनिक का डाटा सेट, और उस पे जाके केगल पे एक अकाउंट बनाओ, वहाँ पे जाके लोगों के सॉल्यूशंस पढ़ो, ठीक है? फिर से वही वाली बात आती है, सॉल्यूशंस पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? यू नॉट गेटिंग आइडियाज फ्रॉम एकदम से, तुमको चीजें पढ़नी पड़ेंगी. फॉर एग्जांपल डीएसए में भी और यहाँ पे भी तो क्वेश्चंस नहीं होते ऐसे प्रैक्टिस के. एमएल में तुम थोड़े प्रोजेक्ट्स करो. प्रोजेक्ट्स में तुम क्या कर सकते हो? फॉर एग्जांपल तुम बहुत सिंपल यार, यू कैन गेट अ यूडेमी कोर्स, यू कैन मेक अ फेस डिटेक्टर, यू कैन मेक जो तुम्हारा एक्सप्रेशन, अगर स्माइल कर रहे हो तो बता देगा कंप्यूटर स्माइल कर रहे हो. यू कैन मेक सच, एंड दे आर लाइक डुएबल इन 2 days. मैक्सिमम तुमको 2 दिन लगेंगे अगर तुम 4-4 घंटे रोज काम करते हो, ठीक है? बहुत सिंपल होता है. रेडीमेड कोड नेट पे मिलता है, तुम बना लो, एक गिटहब पे बना लो, थोड़े चेंजेस करके डाल दो. लिटरली सब लोग यही करते हैं, ठीक है? इन रियलिटी कंपनी में भी जाने पे तुम कोड कॉपी पेस्ट ही कर रहे होगे, लेकिन कॉपी पेस्ट कहाँ से करना है, क्या चीज कॉपी पेस्ट करनी है, फीचर सिलेक्शन करनी है तो कौन सी टेक्निक कॉपी पेस्ट करनी है, वो तुमको पता होना चाहिए. और वो तभी आएगी जब तुम प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं तुमको जो टॉपिक्स बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट. तो देयर आर नो पर्टिकुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. केगल पे जाओ, यू कैन वर्क ऑन डेटा सेट्स, उसमें थोड़ा टाइम लगता है. सो बस मैं ये करूंगा, एमएल के अंदर थ्योरी पढ़ते रहो यार. एमएल में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. एमएल में पाइथन इज नॉट इंपॉर्टेंट, तुमको आना चाहिए बेसिक, और तुमको कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स कोड करने आने चाहिए फ्रॉम द स्क्रैच. फॉर एग्जांपल तुमको लीनियर रिग्रेशन स्क्रैच से बनाना आना चाहिए, ठीक है? तुमको आना चाहिए. तुमसे इंटरव्यू पूछ सकता है, लाइक 10 मिनट लगता है लीनियर रिग्रेशन को स्क्रैच से लिखने में बिना साइकिट-लाइन के. लीनियर रिग्रेशन आना चाहिए तुमको स्क्रैच से, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आना चाहिए तुमको स्क्रैच से, ग्रेडियंट डिसेंट कैसे कोड करते हैं, केएनएन कैसे कोड करते हैं, के मींस कैसे कोड करते हैं, ये कुछ 5-6 एल्गोरिथम्स तुमको आने चाहिए. डिसीजन ट्रीज तुमसे कोई नहीं पूछेगा कोड करने के लिए. रैंडम फॉरेस्ट तुमसे कोई नहीं पूछेगा कोड करने के लिए. एसवीएम तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कोई. तो ये कुछ बेसिक वाले एल्गोरिथम्स तुमको आना चाहिए, पर थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. We have got a second question. Any timeline or any roadmap that you can give to first year and second year students? If you just want to go for job perspective, there are 2 types of people basically. Guys who really like DSA a lot, ठीक है? और DSA में जो तुम चीजें करते हो तो तुम कंपनी में जाने के बाद उसका 1% भी नहीं करने वाले. बाइनरी सर्च भी नहीं यूज होता है. The most basic algorithm is never used in reality. It's just to check your skills. पर अगर तुमको DSA बहुत पसंद आता है, then लोग कोड फोर्सेस पे जाते हैं, प्रोग्राम पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज इट बिकम्स देयर हॉबी. फॉर एग्जांपल अगर तुमको चेस खेलना पसंद है तो तुम खेलोगे ना चेस. तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी कभी कभी बहुत एडिक्टिव होती है. मेरे को बहुत पसंद आई थी कोडिंग जब मैंने पहली बार की थी डीएसए में. पहले बहुत स्केप्टिकल था कि डीएसए करूं नहीं करूं, क्योंकि डीएसए में बहुत प्रॉब्लम, मतलब वो लॉजिकल भी रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं यार, कि ये बंदा ऐसे कर रहा है तो इसको कितना टाइम लगेगा टू रीच दिस मेज टू ये. तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. और अगर तुमको इंटरेस्टिंग लगे तो गो फॉर कोड फोर्सेस. लेकिन अगर तुमको नहीं इंटरेस्टिंग लगता है फॉर फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, तो तुम फर्स्ट ईयर में ज्यादा डेवलपमेंट पे फोकस करो, और सेकंड ईयर से गो फॉर डीएसए. डू लीड कोड, मोर देन इनफ. मेरे कुछ आईआईटी में भी दोस्त हैं जिन लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज निकाले हैं, उनका कोड फोर्सेस पे अकाउंट भी नहीं है. आई एम जस्ट बार बार फोकसिंग ऑन कोड फोर्सेस बिकॉज ये बहुत बड़ी मिथ है कि तुमको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छे नहीं हो तो नहीं कर सकते. लेकिन द रियलिटी इज कि दोनों चीजें बहुत अलग है. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले ऑब्वियसली तुमसे एक हायर एज पे होंगे क्योंकि उनका दिमाग बहुत ज्यादा अच्छे से चलता है. तुमको वहां पे इंटरव्यू तुमसे चाहता है कि बस तुम वो क्वेश्चन कर दो, और अगर तुमने लीड कोड वगैरह इंटरव्यू बिट कर रखा है तो तुम वो क्वेश्चन कर दो. सो फॉर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, अगर तुमको डीएसए में इंटरेस्ट आता है तो गो फॉर कोड फोर्सेस, नहीं तो फर्स्ट ईयर में डू डेवलपमेंट एंड एमएल. Second year to start with DS. So there's one question: aptitude for placement. Is aptitude really required for placements? Yes, it is required for placement, and not मतलब बहुत बेसिक आता है प्लेसमेंट में एप्टीट्यूड. बेसिकली यू कैन गेट एनी एप्टीट्यूड नॉर्मल बुक. आरएस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है. जरूरत भी नहीं है, मतलब अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं भी करा ना तो तुमसे वो क्वेश्चंस हो जाएंगे. कुछ कंपनीज का छोड़ के, जैसे गोल्डमैन सैक्स जब मैंने दिया था तो उनका एप्टीट्यूड वो बहुत मुश्किल आया था. और वो बहुत 1-2 कंपनीज में होगा. देखो मेरे अमेजोन के में भी आया था एप्टीट्यूड, वो बहुत ही सिंपल था. एप्टीट्यूड पे तुमको ज्यादा स्ट्रेस ऑन करने की जरूरत नहीं है फॉर टेक प्लेसमेंट्स. नॉन टेक में आता है एप्टीट्यूड अच्छा. ओनली प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से मैं सिर्फ एक ही चीज पे बार बार कहूंगा, ओनली यू नीड टू फोकस ऑन डीएसए. दैट्स इट. डीएसए कर लो, इट्स मोर देन इनफ. एंड some students are asking about कि if you can guide a few resources जहाँ से मशीन लर्निंग सीख सकें. तो बेसिकली टुवर्ड्स डेटा साइंस थोड़ा नॉर्म ब्रेक करो यार. विकिपीडिया आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करो. विकिपीडिया आर्टिकल्स आर नॉट बैड थिंग, ऑल्दो दे आर वेरी डिस्क्रिप्टिव, बट तुम एक ऊपर से ग्लांस ले लिया करो चीज की विकिपीडिया आर्टिकल से, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ज्यादा अच्छे से दे रखी होती है.
अकॉर्डिंग टू मी। अब मैं तुमको कुछ बुक्स बता सकता हूँ डेटा साइंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज। तुम यूडेमी पे ना, एक बंदा है लेजी प्रोग्रामर, उसके कोर्सेज अलग अलग, मैंने खुद उससे बहुत ज्यादा पढ़ा है। फ्री रिसोर्सेज से ही तुमको काम करना पड़ेगा। बेसिकली तुम, जैसे मैं तुमको टॉपिक्स दिखाए थे, तुम डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेचर या फिर तुम सेंट्रल लिमिट थ्योरम टाइप करो और सेंट्रल लिमिट थ्योरम इजी टाइप कर दो, या सेंट्रल लिमिट थ्योरम इजीली एक्सप्लेन टाइप कर दो, और तुमको वो चीज समझ आ जाएगी बहुत इजीली। दैट्स हाउ यू हैव टू स्टडी डेटा साइंस। देयर आर नो स्पेसिफिक रिसोर्सेज। और फॉर बुक्स देयर ओरिएली की बुक्स आती हैं, तो देयर आर टेंसरफ्लो की बुक है ओरिएली की, जो बेसिकली जो गॉड बुक है, मतलब बाइबल है मशीन लर्निंग की। मैं तुमको बुक दिखा देता हूँ। ये हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद scikit-learn, keras and TensorFlow, दिस इज द बाइबल ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, ये अच्छे लोग भी ये बुक करते हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उसको फॉलो कर लो। इसमें कोड के साथ साथ थ्योरी भी वेल इनफ दे रखी है। ऑब्वियसली इसमें स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट नहीं है, जो मेरे अकॉर्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो तुम इस बुक को वैसे तुम यूज करो। इसका तुमको कहीं ना कहीं फ्री मिल जाएगी, वैसे बड़ी महंगी आ रही है, 2000 रुपए की, अगर तुम घर पे मंगोगे। कोई ना कोई तुमको इसका पीडीएफ वर्जन मिल जाएगा, क्योंकि इसका पुराने वाले का तो मिलता है, ये अब टेंसरफ्लो अपडेट हुआ है तो तुमको मिल जाएगा। ऑल्सो तो कुछ क्वेश्चन होगा कि टेंसरफ्लो करें पाइटॉर्च करें, तो जनरली तुमको दोनों आने चाहिए, बताऊं, क्योंकि कुछ कंपनीज पाइटॉर्च यूज करते हैं, कुछ कंपनीज टेंसरफ्लो यूज करती हैं। जैसे फेसबुक का पाइटॉर्च है तो फेसबुक पाइटॉर्च यूज करती है। पाइटॉर्च थोड़ा मुश्किल होता है। और प्लीज केरास से ऊपर बढ़ो, अगर जो मशीन लर्निंग में ज्यादा सीरियस है। केरास यूज करना बंद करो, टेंसरफ्लो से स्क्रैच में कोड करो। ठीक है, केरास इज बेसिकली एन एपीआई टू टेंसरफ्लो, तो केरास को बंद करके टेंसरफ्लो यूज करना स्टार्ट करो। ठीक है, या फिर पाइटॉर्च यूज करो। स्किप केरास एंड टेंसरफ्लो, क्योंकि पाइटॉर्च के अंदर तुम थोड़ी मैथमेटिक्स कोड करोगे। केरास इज वेरी यूजलेस थिंग यार, तुम केरास यूज करके कुछ सीख नहीं रहे हो। ठीक है, तुमको लगता है तुमको आगे, लेकिन एवरीबडी इज डूइंग दैट, कि वो केरास से 4 चीजें इंपोर्ट करी, तुमको कोर्स मिल जाएंगे। जैसे तुमको कह रहा था यूडेमी पे, जिसमें वो तुमको 400 के अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार भी बनाना सिखाते हैं। व्हाट अ जोक। तो तुमको सेल्फ ड्राइविंग कार बनाना सिखा देंगे वो 400 रुपए के कोर्स में, तो तुमको वो भी मिल जाएगा, लेकिन उसका कुछ यूज नहीं है। दे आर जस्ट मेकिंग यू क्रैम इट। तुमको नेट पे ही वेगली सर्च करनी पड़ेगी चीजें। मैंने तुमको टॉपिक्स दे दी हैं, अब ये तुम्हारी हार्डवर्क पे डिपेंड करता है, तुम इसमें कितना डेल्व करते हो। मैं अगर तुमको अपना पर्सनल बताऊं तो मैं जनरली क्या करता था, एक लिंक पे जाता था, वहां पे कुछ पढ़ा, फिर मेरे को कुछ नई चीज मिली, वहीं से दूसरे लिंक पे चला गया। और एक लेजी प्रोग्रामर करके बंदा है, सो दैट पर्सन इज वेरी गुड फॉर कोर्सेज। तुम उसे कोर्सेज चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। One question: what is the minimum CGPA and how important CGPA is for placements? Yeah, CGPA I'm telling for MC students is very important, to be honest. And CGPA जो तुमको कहते हैं कि नहीं important है, CGPA is important. ठीक है, टॉप कंपनीज है, दे डोंट आस्क CGPA, लेकिन जो उसके बाद कंपनीज आती है, टॉप कंपनी से वो अगस्त में आएंगी। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसके बाद जो कंपनीज आ रही है वो अच्छी नहीं है। टॉप से मेरा मतलब है जो तुम वो 30-40 लाख के पैकेज सुनते हो, ऑल्दो वो 30 लाख के होते नहीं है, CTC होता है वो, बट स्टिल जो सबसे बड़ा मिथ है कि से कोऑर्डिनेटर्स को क्लियर करना चाहिए स्टूडेंट्स को पहले ही, जो Yeah, we'll surely organize another webinar on breaking the ice about CTC. हाँ, तो बेसिकली किसी ने भी लिखा था Atlassian का जो 50 लाख का पैकेज है, वो Atlassian का 12 लाख का ही पैकेज है, और वो बाकी सब स्टॉक्स होते हैं जो तुमको 4 साल में मिलते हैं बेसिकली। तो दैट इज 50 लाख का CTC, कॉस्ट टू कंपनी। सो बेसिकली इट्स ऑल अ गिमिक कि तुम्हारा जो 50 लाख का पैकेज है 50 लाख का होता नहीं है, 12 लाख का ही होता है। I'll add on to Siddharth. The actual mathematics that you learn after your college is that कि CTC and enhanced salary is not CTC divided by 12. Yes, actually, वो नहीं होता। हाँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे खुद का पैकेज इज 32 पॉइंट समथिंग, बट बेस इज 14 ओनली। ठीक है, रेस्ट स्टॉक्स बोनस जो एक बार मिलेगा मेरे को, उसके बाद नहीं मिलने वाला। सो दैट इज माय पॉइंट। सो प्लीज CTCs देख के कंपनीज मत अप्लाई करा करो, कंपनीज को स्टडी करके कंपनीज अप्लाई करा करो। We've got a few more questions. It's primarily about internships कि फर्स्ट ईयर के बाद internships कितने important? तुम एक इंटर्नशिप भी अपने उसमें करो ना, अपने 4 साल के उसमें। देखो ज्यादा ना, इंजीनियरिंग की भाषा में बोलता हूँ, BT मत लो ज्यादा। मतलब यू नीड टू वर्क हार्ड बट गिव टाइम टू अदर थिंग्स ऑल्सो। एंड बेसिकली जैसे तुम सेकंड ईयर में तुम चाहते हो तो एक इंटर्नशिप कर लो, जैसे मैंने करी थी। मैंने क्यों करी थी? क्योंकि मैं बोर हो रहा था, मैं तुमको सच बताऊं। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर तुम थर्ड ईयर में जो तुम एक इंटर्नशिप करते हो, दैट इज अ गुड इंटर्नशिप, इट इज वेल इनफ। अगर तुम्हारे पास थोड़ी इंटर्नशिप ज्यादा है तो ऑब्वियसली तुमको प्रेफरेबल होगा, लेकिन नॉट दैट मच। फिर से मैं तुमको कह रहा हूँ, जॉब्स के अंदर अच्छी कंपनीज में अगर तुमको DSA आता है अच्छे से, अगर तुम उनका दिया हुआ क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, तो तुम्हारे CV में एक इंटर्नशिप हो, 2 इंटर्नशिप हो, एक अच्छी इंटर्नशिप भी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट द जॉब। And I'll add on to Siddharth कि we have our matchmate called Madan Upadhyay. Sorry Madan, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं bro. उसकी इंटर्नशिप इतनी अच्छी नहीं थी, बट उसको टॉप कंपनी मिली है। मतलब थर्ड ईयर के एंड में आई डोंट थिंक सो कि उसकी एक भी इंटर्न थी। मतलब
there are students, for example me, I had 4 internships at the end of my 3rd year, and there are students who had only 1 or 0 internships, लेकिन फिर भी मदन की मेरे से पहले प्लेसमेंट हो गई थी, प्राइमरीली बिकॉज उसका डीएस है और उसकी सीजीपीए स्ट्रांग है. सो ये इंपॉर्टेंट है. बेसिकली जीपीए, अच्छा जीपीए को बंदा पूछा था तो 8 होनी चाहिए यार मेरे हिसाब से. अगर बहुत टॉप कंपनी है तो 8 होनी चाहिए, लेकिन हाँ अगर उससे कम है और कुछ हो नहीं सकता तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, हाँ 7 से नीचे इज नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है, फर्स्ट ईयर में, अच्छा मैं तुमको एक चीज और बता दूं, थोड़ा टेंशन मत लेना, फर्स्ट ईयर में कभी कभार कम जीपीए आती है बिकॉज सब्जेक्ट्स थोड़े हार्ड होते हैं, एक्सक्यूज मी, सब्जेक्ट्स थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन सेकंड ईयर से फोर्थ ईयर के बीच में कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड के सब्जेक्ट बहुत आसान होते हैं, तो जीपीए बहुत ऊपर शूट करती है एकदम. तो यू कैन मेंटेन योर जीपीए अगर तुम थोड़ा भी पढ़ लो. तो 8 ऑनलाइन बैच है. हाँ ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच है अभी, लेकिन स्टिल मैं तुमको बताऊं कि इवन इफ इट गोज ऑफलाइन, सो फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ ईयर द सब्जेक्ट्स आर वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू मी. कुछ भी नहीं होता यार, पता नहीं क्या, इट्स वेरी सिंपल. अच्छा जीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट बाहर एडमिशन लेने के लिए, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर तुमको बाहर यूएस वगैरह में एडमिशन लेना है किसी भी एमएस के अंदर, तो दे लुक आउट फॉर जीपीए बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके पास एक वही क्राइटेरिया है टू जज यू. ठीक है, दे विल नॉट पुट अप इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर यू. सो वहां पे अगर तुमको जैसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आईवी लीग, तो वो तो 9 से ऊपर मांगती है. सो कीप दैट इन माइंड टू, बट फॉर जॉब 8 इज इनफ. 7.5 भी ठीक है यार, मतलब, लेकिन टॉप 8 रखोगे तो बेटर है, यू विल बी ऑन एन एज. बेसिकली अगर 2 लोग एक जैसा परफॉर्म करते हैं तो जीपीए इज यूज्ड टू ब्रेक who's better. There's somebody who's asking कि मैकेनिकल वालों के लिए कैसे वो कोडिंग रिलेटेड जॉब्स ले सकते हैं, if you can guide. यार केमिकल वाले भी कोडिंग कर सकते हैं यार, इट इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट फ्रॉम व्हिच ब्रांच यू आर. सॉफ्टवेयर पे तुम शिफ्ट कर सकते हो इजीली, इट इज वेरी सिंपल. ठीक है, इट बेसिकली अ पर्सन हु इज नॉट डूइंग कॉलेज कैन आल्सो डू डीएससी, टू बी ऑनेस्ट. सो कोई भी ब्रांच हो तो टेक का यही सबसे अच्छा फायदा है. ऑल्दो कंपनीज जो आती हैं कुछ बहुत स्पेसिफिक आती हैं, और जो टॉप कंपनीज होती है स्पेसिफिक नहीं होती हैं. फैंग तो स्पेसिफिक नहीं होती है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एंड इवन लिंक्डइन वगैरह, ये स्पेसिफिक नहीं होती ब्रांच पे, लेकिन उसके अलावा जितनी कंपनीज आती हैं वो स्पेसिफिक होती है, लेकिन तुम ऑफ कैंपस उठा सकते हो. और कोडिंग के लिए बेसिकली वही जो मैंने तुमको रोड मैप बताया कि लर्न एनी लैंग्वेज, C++ जावा में से ही सीखना. ठीक है, पाइथन फॉर डीएसए मत करना, I'm again and again saying this. उसके बाद अगर तुमको इंटरेस्ट आता है तो गो फॉर कोड फोर्सेस, और अगर तुमको सिर्फ जॉब के लिए चाहिए, तुमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो लीड कोड कर लो, इट इज मोर देन एनफ. दीस क्वेश्चंस आई विल शेयर. ये क्वेश्चन तो करने ही करने हैं 150. मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने जितने इंटरव्यूज देखे अपने दोस्तों वगैरह की, इनमें से तो आया ही क्वेश्चन है. ठीक है, आया है तो इनमें से कुछ ना कुछ आया. टाइम कम है तो ये कर लो, टाइम है ज्यादा तो इसके अलावा जो बाकी है वो कर लो. Yeah, so this brings us to the end of this particular interactive session.